Okay, it's such a joy this morning और ये बहुत खुशी की बात है इस सुबह to have Stanley and Esme with us. Stanley and Esme. स्टैनली और एसबी हमारे बीच है। All right, it's such a joy. ये कितनी खुशी की बात है। Donald and I got baptized together in their church डॉन building अंकल और नाइजल अंकल का बपतिस्मा उनकी कलीसिया में ही एक साथ हुआ था in 1983. 1983 All में। right, and subsequently after that, we discovered that we were just one church, Living Word, which was a New Frontiers church, and we began a fantastic relationship with Stanley and their church. और तभी हम एक ही कलीसिया थे, लिविंग वर्ड चर्च, और हमने उनके कलीसिया के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता बनाया था। And Stanley, together with our pastor at that time, took us on a men's camp to Pauna Dam, not the same Pauna Dam today, which is very good. There was no one around at that time. और स्टैनली और हमारे जो पासबान थे उन्होंने मिलकर हमें पावना डैम में सब पुरुषों को लेकर गए थे एक कैंप के लिए। And we had worship, we had teaching, we had fun climbing mountains and activities. और बहुत अच्छा समय था स्तुति आराधना का, और पहाड़ों पे चले थे, अभी जैसा पावना डैम पे वैसा नहीं था पहले। And while we did all that, at the end of the camp, suddenly we were presented with a sheet. और जैसे हमने वो सब किया और कैंप के अंत में एक शीट हमारे पास लेकर आए, And it spelled out who we were in our leadership gifting. और उसमें लिखा था क्या हम है, अपने अगुवाई के वरदान हमारे पास क्या क्या है उसके बारे में। There was the good stuff and maybe the not so good stuff also about और us. कुछ चीजें थे जहाँ हम अच्छे हैं और कुछ चीजें जिनमें हम अच्छे नहीं भी है। And it revealed who we were और वो सब दिखाया कि हम कौन है and what we need to work on as leaders. और ऐसे कौन सी चीजें जहाँ पर अगुवे होने के नाते हमें अपने आप में काम करना I है। was a young guy at that time. I was wondering, hey, we only played games and climbed mountains. How did all this come out about us? और मैं युवा था और मैं सोच रहा था अभी तो हम गेम खेल रहे थे और पहाड़ों पे चल रहे थे, तो वहां से हम यहाँ कहाँ पहुंच गए ये सब सोचने के लिए। From that time, developed an amazing relationship between the New Frontiers churches and Gateway Ministries International churches. और न्यू फ्रंटियर्स का और गेटवे मिनिस्ट्री का उस समय बहुत अच्छा रिश्ता शुरू हुआ। And till today, we don't see ourselves as different, और अब इस समय भी हम ऐसे अलग अलग नहीं देखते हैं अपने आप को, but have enjoyed so much fellowship. और हमने वो जो संगति है उसका बहुत आनंद लिया है। Des and I have had the privilege of being with Stanley and Esme because we would go to the same place on holiday almost every year. और डेज और नाइजल अंकल का सौभाग्य था कि उनको वो भी वही जाते थे घूमने के लिए हर साल जहाँ वो जाते थे। स्टैनली, Initially, I thought Stanley was one of those big guys, और स्टैनली ऐसे थोड़े बड़े से पुरुष है, but they made it so easy for us to relate with them. पर बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत आसान किया हमारे साथ एक रिश्ता बनाने के लिए। And we've received them as a father, spiritual father and mother as well. We've drawn so much from them. और एक आत्मिक पिता और आत्मिक माँ की तरह हम देखते हैं उनको, और वैसा रिश्ता बनाया हुआ है। We love them very much and their family. और उनके परिवार से और उनसे हम बहुत प्यार करते हैं। They helped shape what is called the city pastors meeting over the last 30 years, where there's such amazing unity in the churches. और जैसे देशों में और राष्ट्रों में जो पासबान है उन्होंने उनको अच्छी तरीके से तराशा, उन्होंने मिलकर और उस मदद किया है उसमें। Stanley handed over the church और फिर कलीसिया दी हमें संभालने के लिए, and also handed over Gateway Ministries to someone else, some of his spiritual sons to take forward. और कुछ आत्मिक रूप में जो बेटे थे उनको गेटवे मिनिस्ट्री दिया संभालने के लिए। But he is still so respected, not just in Gateway, where he still plays a big role, उनका बहुत आदर है, और सिर्फ गेटवे में ही नहीं but also in our midst. हमारे बीच में भी उनका बहुत आदर है। This week I heard him saying this is a New Frontiers week, और उन्होंने ऐसे कहा कि ये न्यू फ्रंटियर्स का हफ्ता है, because this week he's with us क्योंकि ये हफ्ता वो हमारे साथ and है next week he's with Living Word Church. और अगले हफ्ते वो लिविंग वर्ड कलीसिया के साथ होने वाले All हैं। right, and he's raised so many spiritual sons and daughters, और and बहुत आत्मिक रूप से जो बेटे हैं या पिता है उनको उन्होंने बढ़ाया है परमेश्वर में। And this morning we're going to have a treat listening, so be ready. और ये Let's हमारा welcome both सौभाग्य of और them आनंद होगा warmly. कि हम सुनेंगे, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। Thank you very much for this opportunity to share God's word with you. और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया कि मैं परमेश्वर के वचन को आपसे बांट सकूं।
Now, I was not aware that it was going through with translation. और मुझे ये नहीं पता था कि इसका अनुवाद भी होने वाला है। So the English version itself will take 1 hour and the Hindi will take another 1 hour. तो अंग्रेजी में 1 घंटा लगेगा और हिंदी में 1 और घंटा लगेगा। So I'm going to go as fast as I can so Well- that we try to finish within the time available. मैं बहुत तेजी से जाऊंगा ताकि हम जल्दी खत्म कर सकें। Now in front of me there are 3 chairs. और मेरे सामने 3 कुर्सियां हैं। What do these 3 chairs represent? ये 3 कुर्सियां क्या दर्शात करती हैं? A first generation, second generation, third generation. ये पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी दर्शाती हैं। In this first generation, I can think of somebody like Father Abraham sitting here. और पहली कुर्सी पे मैं सोच पा रहा हूं कि जैसे पिता अब्राहम यहाँ बैठे हैं। You are putting it on the screen? All right, both of you. Yeah, thank you. You can go to the next one, the next slide. Yep. First generation. Now, we saw Father Abraham sitting here, और हमने देखा कि पिता अब्राहम पहली कुर्सी पे बैठे हैं and he followed the faith in God very faithfully. और उन्होंने परमेश्वर में वो विश्वास को दृढ़ता से पकड़ा। He managed to transmit that faith to his son Isaac. और उन्होंने वो विश्वास जो है आइसैक के अंदर डाल दिया। He was the first generation, his son Isaac was the second generation, but like his father, he followed the faith. और जिस तरह से अब्राहम ने इसहाक के अंदर अपने विश्वास को डाला, पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, तो इसहाक भी अब्राहम जैसे बहुत दृढ़ था। And so also Isaac managed to transmit his faith to his son Jacob. और फिर इसहाक ने अपने पुत्र जेकब के अंदर भी वैसे ही विश्वास को डाला। Therefore, God is known as God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. और इसलिए परमेश्वर को जो जाना जाता है वो इस तरीके से जाना जाता है कि वो अब्राहम का परमेश्वर है, वो इसहाक का परमेश्वर है और वो याकूब का परमेश्वर है। And God would want us to personally follow the Lord, but also transmit the faith to the next and to the next generation. और इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस तरीके से इस बात को समझें ताकि हम भी अपने विश्वास को हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी डालते जाएं। We also have somebody else sitting in this chair. और हमारे पास यहाँ पर और भी कोई यहाँ बैठे हैं पहली कुर्सी पर। We have Joshua sitting here. और यहाँ पर यहोशू बैठे हैं। And Joshua, towards the end of his life, he gathered all the people of Israel. और यहोशू जो अपने जिंदगी के अंत में सारे इजरायलियों को इकट्ठा करते हैं। And he says, God, Jehovah, has promised you something and he has fulfilled all the promises. और वो कहते हैं कि यहोवा ने मुझसे कुछ वादा किया है और उसने अपने सारे वादों को पूरा किया है। Many of you shared testimony like that. He said, all of you have testimony. You're living in houses you have not built, living in cities you have not built, eating fruit which you have not planted. All that God promised, He has fulfilled it for you. और जिस तरीके से हमने आज गवाहियां सुनी उसी तरीके से वहां पर भी गवाहियां थी और उन्होंने कहा कि तुम उन घरों में रह रहे हो जो तुमने नहीं बनाए, उन शहरों में रह रहे हो जो तुमने नहीं निर्माण किए और उस फल को खा रहे हो जो तुमने नहीं पैदा किया। Now choose this day whom you will serve. You want to serve Jehovah, you can serve him. You can serve other gods. As for me and my house, we will serve Jehovah. और उस दिन उसने इजरायलियों से एक पुकार लगाई और कहा कि आज चुन लो कि तुम किसके पीछे चलना चाहते हो, क्या तुम यहोवा के पीछे जाओगे या फिर दुनिया के पीछे जाओगे। लेकिन मैं और मेरा परिवार इस बात का चूज करते हैं, इस बात को मान लेते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे जाएंगे। And all the people said, we will follow Jehovah. और सब ने कहा हम यहोवा के पीछे चलेंगे। Then the Bible says in Judges chapter 2 verse 7 और न्यायों की पुस्तक 2 और 7 में लिखा है that all the people followed Jehovah as long as Joshua was alive. और उसमें ऐसा लिखा है कि सब लोगों ने परमेश्वर यहोवा के पीछे चले जब तक यहोशू वहां पे बैठा था उस कुर्सी पर। And after Joshua died, there were elders who outlived Joshua. They served the Lord in their time as well. और उसके बाद लिखा है कि यहोशू के पास जो प्राचीन लोग जो वहां पर आए उन्होंने यहोशू के काम को आगे बढ़ाया और परमेश्वर के नाम को आगे बढ़ाया और लोगों ने उनके पीछे चले। Joshua followed the faith. यहोशू ने परमेश्वर के विश्वास में चले And Joshua transmitted the faith. और फिर यहोशू ने अपने विश्वास को उन प्राचीनों में डाल दिया। But the elders failed to transmit the faith.
लेकिन जो प्राचीन थे वो उस विश्वास को अगली पीढ़ी तक नहीं डाल पाए। Same chapter, Judges chapter 2, verse 10 says, Then grew a generation which did not know God. और फिर जिस तरह से न्यायों की पुस्तक 2:10 में लिखा है कि फिर एक ऐसी पीढ़ी उठी जो परमेश्वर को नहीं जानती थी And did not know what God had done for Israel. और फिर ये भी नहीं जानते थे कि परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए क्या किया है। And they went after false god. They left Jehovah and began to worship other local gods. और फिर उन्होंने यहोवा को छोड़कर और बाकी छोटे मोटे भगवानों को मानना शुरू कर दिया। What was beautifully done by Abraham, Isaac and Jacob dropped. The ball was dropped. It did not go properly. It went properly from Joshua to elders, but it did not go out properly from elders to the next generation. और जिस तरह से अब्राहम, इसहाक और जेकब में वो पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें ट्रांसफर हुई, वैसे जोशुआ ने अपने प्राचीनों को तो जरूर बांटा, लेकिन उसके आगे वो चीज जो वो गेंद थी वो गिर गई। So the question comes to us is, A, are you following the Lord? और सवाल जो हमारे पास यहाँ पे उठता है कि क्या हम परमेश्वर में विश्वास कर रहे हैं, And two, are you raising the next generation? और दूसरा कि क्या आप दूसरी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, Or will your children and will the younger people go after other gods? और क्या आपके बच्चे और उनके बच्चे बाकी भगवानों के पास चले जाएंगे। You have another person sitting here, a very famous person called King David. और यहाँ पर एक और बहुत ही महान राजा बैठा है, राजा दाऊद। And David followed the Lord wholeheartedly. और दाऊद ने परमेश्वर के पीछे चला अपने पूरे दिल से। He raised up his son Solomon very well. और उसने अपने पुत्र सुलेमान को बड़े अच्छी तरीके से पाला पोसा बड़ा किया। Solomon writes his book of Proverbs. और सुलेमान जो है वो नीति वचन लिखते हैं। And there he says, my father said to me, be careful of this. My father said to me, don't go that way. All his proverbs are nothing but what his father taught him. और नीति वचन में जो भी कुछ लिखा है वो सुलेमान इस तरीके से लिखता है कि मेरे पिता ने कहा ये मत करना, मेरे पिता ने कहा वो मत करना। तो इसी तरीके से पूरे नीति वचन में वही लिखा है सुलेमान ने जो उसके पिता ने कहा था मत करना। But Solomon failed to bring the next generation. लेकिन सुलेमान अगली पीढ़ी को नहीं ला पाया। First of all, he married 700 wives. सबसे पहले उसने 700 बीवियों से शादी कर ली And 300 concubines. और 300 रखेले रख ली। How many children he had? कितने बच्चे थे उनके पता ही नहीं। I don't know whether he also knew. उसको ये भी नहीं, मुझे नहीं पता कि उनको भी पता था कि उनके कितने बच्चे थे। David took Solomon in his lap and taught him line upon line, precept upon precept, here a verse, there a verse, this Bible verse, that Bible verse. But Solomon had no time. He had 1,000 wives to look after. Where will he have time to look after children that were born? और दाऊद ने सुलेमान को अपनी गोदी में बिठाकर वचन पर वचन बाइबल से हर चीज जो पूरा वचन था उसको सिखाया, लेकिन सुलेमान के पास समय नहीं था क्योंकि 1000 बीवियों को संभालता या बच्चों को पढ़ाता। And so it says, finally his son Rehoboam took charge, and no sooner Rehoboam took charge, the nation of Israel got divided. He lost 10 tribes out of the 12 tribes. और फिर जैसा बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं कि उसके बाद जो सुलेमान का बेटा था रेहोबोम, उसने राज किया और उसके राज में आते ही इजराइल तबाह हो गया, नष्ट हो गया। 10 जातियां निकल गई इजराइल से और सिर्फ 2 जाति वहां बची। What does this first chair represent? पहली कुर्सी किस बारे में दर्शाती है? It speaks of a person who is absolutely committed. और वो पहली कुर्सी उसके बारे में बताती है जो वचनबद्ध है। Actually, all 3 chairs should be chairs of commitment if the faith is transmitted well. और जो तीनों कुर्सियां हैं वो वचनबद्धता पे चलनी चाहिए अगर विश्वास जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बांटा जाए। But we just saw, while this chair represents commitment, this chair represents compromise. और जहां पर हम देखते हैं कि जो पहली कुर्सी है वो वचनबद्धता को दिखाती है, लेकिन जो दूसरी कुर्सी है वो कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौते को दिखाती है। And this chair therefore goes into conflict. और जो तीसरी कुर्सी है वो गड़बड़ में चली जाती है। This person is people conscious, serving people all the time. और जो पहली कुर्सी के जो लोग हैं वो हमेशा लोगों की सेवा करने में जुटे रहते हैं। While this second person is power conscious, prestige conscious,
possession conscious. लेकिन जो दूसरी कुर्सी है वो ताकत के पीछे दौड़ रहे हैं, अपनी सिद्धि के पीछे दौड़ रहे हैं और अपने गुमान के पीछे दौड़ रहे हैं। The reason is that the result is that the one in this chair loses his sense of purpose. और इससे होता क्या है कि जो तीसरी कुर्सी में जो भी होते हैं वो अपने पर्पस यानी कि मकसद को खो बैठते हैं। This person represents conviction in his heart and is absolutely strong in his conviction. और जो पहली कुर्सी पे लोग बैठे हैं वो दिखाते हैं कि उनके दिल में किस तरीके का दृढ़ विश्वास है। But this person in the second seat is following a convenient religion. लेकिन जो दूसरी कुर्सी पे बैठे हैं वो एक ऐसे धर्म को मान रहे हैं जो ठीक है, चलता है। This person on Sunday morning may say praise the Lord. और ये जो इंसान है यहाँ पर रविवार पे हो सकता है कि कहे कि हाँ प्रभु की स्तुति हो। But on Monday in his company's cafeteria he may speak a different language. लेकिन सोमवार को अपने काम की जगह पे कैफेटेरिया में हो सकता है कि वो एक अलग ही भाषा बोल रहे हैं। He looks like born again on Sunday but Monday is dead again. और जो है संडे को वो पुनरुत्थान से भरे हुए लगते हैं, लेकिन मंडे को यानी सोमवार को वो फिर से मरे हुए लगते हैं। So the person who comes to the third chair, it has deteriorated so much that he is in confusion. तो जो तीसरी कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते इतनी ज्यादा समस्या हो जाती है कि जो वहां इंसान बैठा है उसे समझ ही नहीं है कि होना क्या चाहिए। This one knows God firsthand. और जो पहली कुर्सी का इंसान है वो परमेश्वर को जानता है अपने आप से। This one knows about God. जो दूसरे हैं ये परमेश्वर के बारे में जानते हैं। It's possible today morning somebody came and shared a testimony. और हो सकता है कि आज सुबह किसी ने आकर एक गवाही बांटी, They experienced healing, उन्होंने आज चंगाई देखी, supply of God's money, परमेश्वर से उनको पैसा मिला, whatever were the incentives they were received, और जो भी चीज अच्छी चीजें परमेश्वर से मिली their prayers were answered. उनकी प्रार्थना का उत्तर मिला। They experienced God firsthand. उन्होंने परमेश्वर को पहली बार अपने आप से जाना। But the one sitting in this chair, लेकिन जो दूसरी कुर्सी पे बैठे हैं he goes home वो घर जाते हैं and he said, today in my church, और आज मेरी कलीसिया में he received incentive. उनको अपने दान को पुरस्कार मिला She received a healing. और वो उन्हें चंगाई मिली। They share about God, but they have not experienced God. वो परमेश्वर के बारे में बात करते हैं लेकिन उन्होंने खुद परमेश्वर को खुद से नहीं चखा है। They have experienced what God has done. उन्होंने इस बात का प्रमाण लिया है कि परमेश्वर ने क्या किया है। But these people, as I said, have a second-hand experience of what God has done. और ये जो दूसरी कुर्सी के लोग हैं ये सेकंड हैंड जिस तरीके से उनको मालूम पड़ता है कि परमेश्वर ने क्या किया है। This one has not experienced God at all. और तीसरी कुर्सी ने तो परमेश्वर को चखा ही नहीं है। This one is focused on what the Bible says. और पहली जो पीढ़ी है वो बाइबल क्या कहती है उसके ऊपर पूरी तरह से डटे हुए हैं। And they will live by what they read every day. और वो इस बात से जिएंगे जो वो रोज पढ़ते हैं। It's possible in their workplace, some person was coming late all the time, not fulfilling that deadline, so they fired him. और वो देखते हैं कि अपने काम की जगह पर अगर कोई समय पे नहीं आ रहा है या अपने काम को ठीक ठाक नहीं कर रहा है तो उसे वो निकाल देंगे। But when he goes home, लेकिन जब वो घर जाते हैं, he reading his Bible, जब वो अपने बाइबल पढ़ते हैं, he becomes conscious that this person whom he fired a lot is actually made in the image of God. और जब वो बाइबल पढ़ते हैं और इस बात को समझते हैं कि जिस व्यक्ति को उन्होंने निकाल दिया है कंपनी से वो परमेश्वर की स्वरूप में बना हुआ है, So he realizes what I said to him was correct, but the way I said to him was not correct. तो फिर उनको दिल में ऐसा महसूस होता है कि मैंने जो उनको कहा था शायद वो सही था, लेकिन जिस तरीके से कहा था वो बिल्कुल सही नहीं था। They are ready to go next day and apologize to that concerned person. और वो अगले दिन जाकर लोगों से माफी मांगने को तैयार रहते हैं। They are focused on what the word of God says. They are not worried about their ego. और वो जो है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है उस पे दृढ़ विश्वासी है, इस बात पे नहीं कि उनकी ईगो, उनका जो घमंड क्या कहता है।
But this person is more ego conscious लेकिन जो दूसरी कुर्सी वाला है वो अपने बारे में ज्यादा सोचता है and he is more worried about what people will say, not what the word of God says. और वो इस बात की चिंता ज्यादा करता है कि लोग क्या कहेंगे, परमेश्वर का वचन क्या आएगा उससे उसको ज्यादा परवाह नहीं है। This person is more focused on his feelings. और ये जो तीसरा कुर्सी का इंसान है वो इस बात पे ज्यादा सोच विचार करता है कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। This person is spiritual. वो जो पहला आदमी है वो आत्मिक है And therefore, he is led by the Spirit. He walks in the Spirit. He hears what the Spirit of God says. और इसीलिए वो इंसान जो है पवित्र आत्मा के चलाए में चलता है, वो सुनता है कि आत्मा क्या कहती है और वही काम करता है। Now, chair number 3, that man is worldly or natural. और तीसरी जो कुर्सी पे इंसान बैठा है वो दुनियावी है या फिर नेचुरल जो साधारण. स्वाभाविक है। But this person is, the one in the middle is carnal. The Bible says in Romans chapter 6, carnal mind. और रोमियो की पुस्तक 6 कहती है कि जो बीच की कुर्सी में बैठा है वो एक ऐसा दिमाग लेके चल रहा है जो कपटी है। And so, this is spiritual. This guy doesn't know he is carnal because he comes on Sunday every day. He thinks he's spiritual, but he's not spiritual. He's carnal. और जो पहली कुर्सी वाला इंसान है वो उसको पता है कि वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा में चल रहा है, धार्मिक है, लेकिन दूसरी कुर्सी वाला जो इंसान है वो कलीसिया तो आ रहा है लेकिन उसको ये बात की समझ नहीं है कि वो अपने दिल के कपट की वजह से चल रहा है, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं चल रहा है। मतलब from his mouth he's just just saying Jesus, God, everything, but in life there is no Jesus or God in him. और इसलिए अपने मुंह से वो सारी चीजें इस तरह से अच्छी अच्छी बातें बोलेगा कि हाँ परमेश्वर, यीशु मसीह, वो सब कुछ, लेकिन दिल में और उसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है। This one has the fresh testimony, this has an old testimony, this has got no testimony. जो पहली कुर्सी पे बैठे हैं उनके पास ताजी गवाही है, जो दूसरी कुर्सी पे बैठे हैं उनके पास बासी गवाही है, जो तीसरी पे बैठे हैं उनके पास गवाही ही नहीं है। As we saw, some people give fresh testimony today. और आज सुबह हमने देखा जैसे लोगों ने नई गवाही दी, अच्छी तरोताजा गवाही दी। But let's look at this person. अब आइए दूसरी कुर्सी को देखते हैं। This person was in his house and he and his wife were quarreling since last few days. और ये जो बैठे थे यहाँ पर, वो अपने घर में पिछले हफ्ते से अपने पत्नी के साथ लड़ाई कर रहे थे। And even on Sunday morning they had a big fight. और रविवार के सुबह को भी एक बड़ी लड़ाई हुई इनकी। And then they took a bus and they came here. और फिर उन्होंने एक बस ली और यहाँ पे आ गए। And in the bus also they were fighting. और बस में भी वो लड़ाई कर रहे थे। And behind them there were two children sitting there. Children, they also were fighting. और उनके पीछे उनके 2 बच्चे बैठे हैं, वो भी लड़ाई कर रहे थे। When parents are fighting, what will children? They'll also fight. और जब माँ बाप ही लड़ाई कर रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, वो भी लड़ाई कर रहे हैं। And in between, the father will turn around and say to his children, "Shut up!" और फिर उसके बीच में जो पिता है वो पीछे मुड़ के कहता है, चुप हो जाओ। And then, of course, they get down from the bus close to the church building. और फिर वो बस से उतरते हैं और कलीसिया के आसपास आके रुकते हैं। And then he takes his Bible. और फिर वो अपनी बाइबल को लेते हैं। And then he goes near his wife. और फिर वो अपनी बीवी के पास जाते हैं। And says to her, "Hold my hand." और फिर वो अपनी बीवी को कहते हैं, मेरे हाथ को पकड़ लो। And she says, "What?" और फिर बीवी कहती है, क्या? He says to her, "Hold my hand." और फिर अपनी बीवी को कहता है, मेरे हाथ को पकड़ो। So the wife then holds hand and they both walk together. He's holding the Bible and she's walking next to him and they enter the church premises. और फिर जो है वो अपनी बाइबल को पकड़े हुए और उनकी जो पत्नी है उनका हाथ पकड़ के वो कलीसिया में घुसते हैं। And as they come in, they say, "Praise the Lord." और जैसे ही वो अंदर Hallelujah. आते हैं Glory be to God. और वो कहते हैं, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। And so they have this duplicate, double life. और इसलिए उनके पास एक दोगला जीवन है। They are sitting somewhere at the back. They don't sit in the front. और इसलिए वो हमेशा पीछे बैठते हैं, वो कभी आगे नहीं आते हैं। And then various people come and give testimonies. This week my incentive got sanctioned, or this week my daughter got healed, this week I got the money. They hear the testimonies. और फिर वो ऐसी ऐसी गवाहियां सुनते हैं कि हाँ मेरे आज इस हफ्ते मुझे एक बोनस मिला या मेरी बच्ची को चंगाई मिली। And then this man feels a little uncomfortable in his seat there. और फिर उसकी कुर्सी में उसको थोड़ा अटपट लगता है। He says, "I must also share a testimony." बोलता है मुझे भी लगता है एक गवाही बांटनी चाहिए। So he comes forward. तो वो आगे आता है His testimony goes like this. और वो गवाही ऐसे चलती है।
45 years ago, 45 साल पहले I gave my life to Jesus. मैंने अपने जीवन यीशु को दिया था। My life was transformed. मेरी जिंदगी जो है बदल गई थी Now there is great peace in my house. और उसके बाद मेरे घर में बहुत शांति है। You know, at the back, his son and daughter are sitting there. और वहां पे पीछे में लड़का और लड़की उनके बैठे हैं। So the brother says to the sister, और फिर जो भाई बहन को कहता है, there is great peace in our house. हमारे घर में बहुत शांति है। Then the boy says, if this is peace, if this is religion, if this is God, I want nothing of it. He has shifted from here to here because of the duplicate life of his parents. और फिर जब वो लड़का देखता है कि अगर ये शांति है और ये धर्म है तो मुझे इस धर्म से और इस शांति से कोई लेना देना नहीं है, फिर वो दूसरी कुर्सी से उठ के सीधा तीसरी कुर्सी पे बैठ जाता है। We are responsible to produce this kind of people और हम जिम्मेवार हैं इस कुर्सी पे बैठे हुए लोगों को पैदा करने के लिए, because we have compromised, we have lived a convenient life. क्योंकि हमने समझौता किया अपने जीवन में और हमने आराम की जिंदगी जीना पसंद We किया have got no conviction, we have no commitment, we are not reading the word of God. और हमारे अंदर कोई ऐसी बदलाव नहीं है, हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं और कोई दृढ़ विश्वास नहीं है हमारे पास। We have some old testimony which is outdated now. और हमारे पास कुछ पुरानी गवाहियां हैं जो अब पुरानी हो चुकी हैं We don't live by what we said, whatever happened to us few years ago. और हम उस चीज से नहीं जीते हैं जो परमेश्वर आज कह रहा है। He's a true believer. वो जो है वो सच्चे विश्वासी हैं। He's a hypocritical believer. वो जो है ये Dhongi. ढोंगी विश्वासी है। And this person is an unbeliever. और ये जो तीसरे हैं ये विश्वासी हैं ही नहीं। He is on fire for God. और वो जो है परमेश्वर में जलन में है। He's hot in his passion for God. और ये जो है परमेश्वर के लिए बहुत दृढ़ है, लगे हुए हैं। He has deep conviction about God. और परमेश्वर के बारे में उनके दिल में बहुत दृढ़ विश्वास है। This person, chair number 3, is gone cold. और ये जो तीसरी कुर्सी में बैठे हैं ये एकदम ठंडे हो चुके हैं। But this person is lukewarm. लेकिन जो तीसरे जो बीच के कुर्सी में बैठे हैं वो गुनगुने हैं। He's hot, he's cold, but this one is lukewarm. वो जो पहली कुर्सी में वो गर्म है, तीसरी कुर्सी वाले ठंडे हैं, लेकिन दूसरी कुर्सी वाले गुनगुने हो चुके हैं। Actually, it is easy to share the gospel with this one. और आसान है कि इस टाइप के इंसान के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को बांटना। This person is more lost than this one. वो जो बीच वाले इंसान हैं वो ज्यादा खोए हुए हैं इनसे, Because he knows he's lost, this one doesn't know he's lost. क्योंकि ये वाला जानता है कि मैं खोया हुआ हूं, लेकिन वो बीच वाला जानता ही नहीं कि मैं खोया हूं। And so it is more, if you tell him, do you know the Jesus? How dare you ask me? My grandfather was a bishop. और फिर उनसे जब सवाल करते हैं कि क्या तुम्हें यीशु के बारे में जानकारी है, कहते हैं आपने मेरे से पूछने की हिम्मत कैसे की, मेरे दादाजी बिशप थे। And so he is more lost, but he doesn't know he is lukewarm. और वो ज्यादा खोए हुए हैं लेकिन उनको पता नहीं इस बात के लिए और वो गुनगुने हो चुके हैं। When I use the word lukewarm, or as my brother says, gunguna, do you remember any Bible verse? और अगर मैं जब ये शब्द का इस्तेमाल करता हूं ल्यूकवार्म या गुनगुना, तो आपको कोई बाइबल का वचन याद आता है? Spit it out. All right, so we'll put it on the screen. Let's look at it. और आइए देखते हैं वचन क्या कहता है। Put it up. Yep, it says in Revelation 3:14 to 20. और प्रकाशित वाक्य 3:14 से 20 ये कहता है, It says to the angel of the church. So this message is for the church, not for outsiders. और ये जो संदेश है ये कलीसिया के लिए है, बाहर के लोगों के लिए नहीं है। This is for people who are sitting in the middle chair. और ये उन लोगों के लिए है जो बीच की कुर्सियों में बैठे हैं। I don't know where you are seated, but if you are sitting in the middle chair, then this is what the Holy Spirit is telling you. और अब मुझे नहीं पता कि आप इन तीनों में से कौन सी कुर्सी में है, लेकिन अगर आप इस कुर्सी में हैं तो ये वचन आपके लिए है। To the angel of the church in Laodicea write, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. और ये कहता है कि वो स्वर्गदूत जो कलीसिया लाओडिसिया की है वो ऐसा लिखती है कि ये जो शब्द हैं वो सच हैं, परमेश्वर के नाम पे आमीन है और सही गवाही खड़ी करते हैं जो परमेश्वर जो राजा है उसके लोगों के लिए। I know your deeds, that you are neither hot nor cold. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, ना तो तुम ठंडे हो ना ही तुम गर्म हो। I wish
you were either one or the other. मुझे आशा है कि तुम इन दोनों में से शायद एक होते, But because you are lukewarm, और neither hot nor cold, I'm about to spit you out of my mouth. क्योंकि तुम गुनगुने हो चुके हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि तुम गुनगुने हो चुके हो, ना तुम गर्म हो या ठंडे हो, तो मैं अब तैयार हूं तुम्हें अपने मुंह से थूक देने के लिए. Sorry. So God is irritated by this person in chair number 2 because he's going to spit you out. क्योंकि परमेश्वर जो है इस बीच वाली कुर्सी जैसे इंसान से अब परेशान हो चुके हैं और अब वो थूक देने के लिए तैयार हैं. You know, sometimes our stomach is churning and you vomit. We have disturbed God that he's about to vomit this person from और chair number 2. कई बार हमारे पेट में गड़बड़ी होती है और उसके बाद हमें उल्टी हो जाती है, तो उसी तरीके से हमने परमेश्वर के हृदय में कुछ गड़बड़ी की है और वो तैयार है हमें उल्टी कर देने के लिए. So this person is more irritated to God, not this person. He says, you wish for hot or cold. We are cold, I can share the gospel and get you into back. But this person is an irritation and God wants to spit that person out. तो इस बात को समझिए कि परमेश्वर ना तो गर्म वाले से बात कर रहा है ना ठंडे वाले से बात कर रहा है, क्योंकि ठंडे को वो कहता है कि मैं तो तुम्हें सुसमाचार सुना के वापस ले आऊंगा, लेकिन इस इंसान से वो परेशान हो चुका है और थूकने के लिए तैयार है. What is God's remedy or advice for this person? और परमेश्वर के लिए क्या उपचार है इस कुर्सी पे बैठे इंसान के लिए? Let's look at the next slide. आइए अगली स्लाइड को देखेंगे. It says that church in Laodicea, to whom the message is given, that church says, you say, I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind and naked. और ये उस कलीसिया जो लाउडिशिया के कलीसिया है उससे परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम ये कहते हो कि मैं तो अमीर हूं, मेरे पास धन है और मुझे अब किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम इस बात को विश्वास नहीं करते हो कि तुम फटे हो, गरीब हो, नंगे हो और अंधे हो. I counsel you to, now this is a remedy, I counsel you to buy from me gold refined in the fire. और मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि तुम मुझसे ऐसा सोना ले लो जो तपा हुआ है आग, ताकि तुम अमीर बन सको. And then it says, and white clothes to wear so you can cover your shameful nakedness. ताकि तुम्हें वो सफेद वस्त्र मैं दे दूं ताकि तुम अपनी शर्म को और अपने नंगेपन को ढांक लो. And eye salve to put in your eyes so that you can see. Kajal. To put kajal in the eye. So अब तुम्हारे मुझे काजल डालना पड़ा ताकि तुम इस बात को देख सको. ये आंखों का सुना होता है, आंखों का सुना लगाते हैं तो अपनी आपकी दृष्टि जो है सही हो जाती है. ठीक है. So here we are. Now this church is a rich church. और ये जो कलीसिया है ये एक अमीर कलीसिया है. Because in the city of Laodicea they had thriving banking industry. क्योंकि लाओडिशिया के शहर में वहां पर बैंकिंग बहुत अच्छी चलती थी. In their caves there was a certain substance called caliricum by which pharmaceutical industry was thriving because they were making eye salve and that was being exported. They were making a lot of money. क्योंकि वहां के गुफाओं में कुछ फार्मास्यूटिकल की जो इंडस्ट्री है उससे बहुत फायदा हुआ. वो उससे आंखों का काजल बनाते थे और उसे बाहर के देशों में बेचते थे, उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे. They had a sheep which produced a kind of wool and that woolen garments were being exported, so they were becoming very rich. और एक ऐसा उनके पास भेड़ था जिसकी ऊन वो बाकी देशों में भेज पाते थे जो बहुत महंगी बिकती थी और इसके लिए वो बहुत अमीर थे. So they were thriving textile industry, thriving pharmaceutical industry and thriving banking industry. तो इसीलिए उनका जो कपड़े का व्यवसाय था वो बड़ा अच्छा चल रहा था, दवाइयों का व्यवसाय था वो बड़ा अच्छा चल रहा था और banking. और जो व्यवसाय फाइनेंस का था, बैंकिंग का था, वो बड़ा अच्छा चल रहा था. And so the church people said, I am rich, I don't need anything. तो इसलिए कलीसिया के लोगों ने कहा मैं अमीर हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है. But God is saying, according to your books, you got a lot of money in your bank, but according to my books, you are wretched, pitiful, naked and blind.
तो परमेश्वर उनसे ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हारी किताबों में जो अकाउंट की किताबें हैं उसमें लग रहा है, दिख रहा है कि बहुत पैसा है, लेकिन मेरी किताबों में तुम नंगे हो, गरीब हो, शर्मनाक हो और बेकार हो। So, the way we measure a person's worth is by money, but God doesn't measure worth by that money. और इसलिए जिस तरीके से हम किसी इंसान को नापते तोलते हैं वो पैसे के बराबर होता है, लेकिन परमेश्वर इस तरीके से हमारा नाप तोल नहीं करते हैं। And God is asking this church, come to me and buy from me true gold, buy from me, true clothing, and buy from me the true eye salve, which will help you to see. तो परमेश्वर इस तरीके से कह रहे हैं कि मेरे पास आओ और सही और सच्चे सोने को मेरे से खरीदो, सफेद वस्त्रों को मेरे से ले लो, और आंखों के काजल जो तुम्हारी आंखों को साफ कर देंगे वो मुझसे ले लो। There was an income tax officer. एक इनकम टैक्स का ऑफिसर था, He heard that there is a person who claims he is very rich. और उसने सुना कि एक इंसान है जो बोलता है कि मैं बहुत अमीर हूं, He was a Christian man. और वो एक मसीही आदमी था। So the income tax went and raided that man's house. और फिर वो इनकम टैक्स जो थी वो गई उस घर पे, उसके घर पे, और रेड मारी। But they found the house was very simple. लेकिन वो गए और घर उनका देखा बहुत ही छोटा सा था, Very, very simple. बहुत ही साधारण घर था उनका, The man was a school teacher. और जो इंसान थे वो एक शिक्षक थे। So the income tax officer was confused. तो जो इनकम टैक्स का जो ऑफिसर था वो हक्का बक्का रह गया। So he asked that man, I have heard people say you are very rich. और मैंने सुना है, उसने कहा उससे कि मैंने सुना है आप लोग कहते हैं कि आप बहुत अमीर हैं, Is that true? क्या वो सच है? He said, yes, I am very rich. वो बोलता है हाँ हाँ मैं बहुत अमीर हूँ। So I have come as income tax officer to find out, tell me about your riches. और फिर वो कहते हैं कि मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर के उपाधि में आया हूँ, बताओ मुझे तुम्हारे पास क्या क्या है। So he says, tell me, do you have any gold? और उसने कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई गोल्ड है? He says, yes. उसने कहा हाँ है। Please show it to me. उसने कहा दिखाओ मुझे। And how much will it weigh? और कितना वो भारी होगा? About 1.5 kilos. बोलता है करीबन 1.5 किलो। 1.5 kilos? बोलता है करीबन 1.5 किलो। Please show it to me. दिखाओ दिखाओ। So he brought his Bible. तो उसने बाइबल लेके आया। Please change next slide and the next. And the next. Yeah, just go to the next one. And the first point. Yes. And also next, just immediately after that. Yes. It says, the Bible, they are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the honeycomb. और बाइबल जिस तरह से बताती है भजन संहिता में कि जो परमेश्वर का वचन है वो किसी भी सोने से ज्यादा मूल्यवान है और किसी भी शहद से ज्यादा मीठा है। So the man says, this is my gold. वो कहते हैं कि ये मेरा सोना है। So the income tax officer took his pen and wrote down, he has got gold, but he calls it Bible. और इनकम टैक्स का जो ऑफिसर था वो लिखता है कि उसके पास सोना है पर उसे वो बाइबल कहता है। Then he says, do you have any precious stones? और वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई अच्छे बड़े जड़ी मोती है, हीरा मोती है? And he says, yes. बोलता है हाँ मेरे पास है। Can I have a look? बोलता है देख सकता हूँ। So he called his wife. तो उसने अपनी पत्नी को बताया। And he says, this is my ruby. और उसने कहा ये रूबी पत्थर की जैसे है, मेरी रूबी। He said, how come? बोलता कहा कैसे? He says, in my Bible it says that a noble wife is worth more than ruby. और क्योंकि वो बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक अच्छी पत्नी जो है वो रूबी पत्थर जितना कीमती होता है उससे ज्यादा कीमती है। I have a friend who read it slightly differently. और एक दोस्त है मेरा जो उसने थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा इसको। A noble wife, who can find? उसने कहा एक अच्छी बीवी किसको मिलेगी? Anyway, that's beside the point. But he says valuable, it's like ruby. लेकिन वो बात वो मजाक है, लेकिन जो अच्छी बीवी है वो रूबी की जैसे है। Then he says, do you have any inheritance you have received from your parents, and do you have an inheritance to keep for your children and other people? फिर उनसे पूछा कि आपके पास क्या कोई मिरास या कोई जागीर है जो आपके बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए आप रखने वाले हैं? He said yes. बोलता हाँ है मेरे पास। He said, what is that wealth? बोलता क्या है वो कीमत? He says, this silver color hair. बोलता है ये जो
सफेद बाल हैं। It is the true treasure. बोलता है ये सच में मूल्यवान है। And a children's children are like crown on a person's head. और जो मेरे बच्चे और उनके बच्चे हैं वो एक ताज की तरह है मेरे सर पे। And the income tax officer wrote down all his statement of wealth. और फिर जो इनकम टैक्स ऑफिसर था उसने सारी चीजों को लिख दिया अपने कॉपी में कि ये सब उनकी पूंजी है। And the income tax officer got up to leave. और फिर इनकम टैक्स ऑफिसर उठा। He said, I had heard report that you are very rich. मैंने सुना था कि तुम बहुत अमीर हो। And truly, you are very, very rich. और सच में तुम बहुत बहुत अमीर हो। But all of this is income tax free. लेकिन ये सारी चीजें जो हैं इस पे कोई इनकम टैक्स नहीं है। Other one will get taxed by, you lose it by tax and by inflation. But this wealth will last you for eternity. और फिर उसने कहा कि जो तुम्हारी बाकी पूंजी होगी या किसी और की पूंजी होगी उस पे टैक्स लगेगा, वो चली जाएगी, पर ये जो पूंजी है इस पे कोई टैक्स नहीं है, ये अनंत जीवन के लिए है। And Jesus is telling that church, buy from me the true gold, that is the word of God. और यीशु अपनी कलीसिया से कह रहे हैं कि हम मुझसे वो सच्चे सही सोने को खरीदो। So the first point is open the scriptures. तो पहली चीज है कि बाइबल को खोलो। Next one is, what does it say? Open the God-given bag of righteousness. और फिर उस थैले को खोलो जो परमेश्वर ने आपको धार्मिकता का थैला दिया है, उसे खोलो। Now these people had a lot of woolen garments by which they were dressing themselves. और इन लोगों के पास बहुत सारे ऊनी वस्त्र थे जिससे अपने आप को वो ढकते थे। Now anybody knows about Raymond Woolen Mill? और Raymond किसी Woolen को रेमंड के जो ऊनी वस्त्र हैं उसके बारे में पता है? It is the number one woolen company in India. और जो रेमंड कंपनी है वो नंबर 1 पे है। And they produce a special kind of wool because they get a sheep from Australia and it produces a merino wool, and that is considered to be one of the best woolen cloth. वो इसलिए है क्योंकि वो अपनी जो ऊन है वो ऑस्ट्रेलिया में एक भेड़ जो होती है वहां से लेके आते हैं, उसका नाम है मरीनो, और वो सबसे श्रेष्ठ ऊन मानी जाती है, इसलिए वो जो बनाते हैं वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। And I know about this Raymond Woolen Mill because my dad worked for 37 years in Raymond Woolen Mill. और ये रेमंड के बारे में इसलिए जानते हैं क्योंकि इनके पिताजी जो है 37 साल तक रेमंड कंपनी में काम करते थे। Because he worked in Raymond, he got some special discount coupons. और क्योंकि वो रेमंड में काम करते थे इसलिए उनको एक कुछ कूपन मिले जो डिस्काउंट जिससे मिल सकता था। So during my teenage, my college days, I always wore Raymond clothing. और जब उन्होंने उनके जब बढ़ोतरी वाले जो साल थे, कॉलेज के साल थे, उन्होंने हमेशा रेमंड के जूते, रेमंड के कपड़े ही पहने। And you would have remembered the advertisement of Raymond. Whoever wears Raymond is a complete man. और आपने वो एड को देखा होगा कि जो भी रेमंड कपड़ा पहनता है वो पूरा पुरुष है। I want to say I wore Raymond regularly but never felt complete. और मैं ये कह सकता हूं कि मैंने बहुत रेमंड पहना है लेकिन कभी भी ऐसा पूर्ति महसूस नहीं हुई मेरे को कि मैं एक पूर्ण इंसान हूं। Because my sinful nature and my dirt and filth can only be covered by the righteous garment Jesus gives us. क्योंकि मेरा जो गंदा स्वभाव है, जो पाप वाला स्वभाव है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह जो मुझे कपड़े देते हैं उससे ही साफ हो सकता है। Raymond Woolen Mill has got no answer to my sinful nature. और रेमंड वुलन मिल के पास मेरे प्राकृतिक और जो जीवन है जिसमें पाप करता हूं उसका कोई इलाज नहीं है। And Jesus is telling that church, don't rely on that textile factory of yours, but trust in my garments of righteousness, which you get because Jesus died on the cross to give you garments of righteousness. और परमेश्वर उनसे ऐसा कहता है कि तुम अपनी वो मिलों पे विश्वास ना करो, वो तुम्हें कुछ ना दे पाएंगी, पर मैं जो तुम्हें वस्त्र देता हूं वो तुम्हारे नंगेपन को ढकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान को दिया, इसलिए हमें धार्मिक वस्त्र मिले। And what is the third thing he tells us to do? और तीसरी चीज हमें क्या मिलती है? Open your eyes. कि अपनी आंखों को खोलो। And now he says, you are using that particular eye salve which is exported from the pharmacy industry, but that will only deal with these eyes. But there are another set of eyes called the eyes of your heart, which truly need to be opened. So buy from me the eye salve with which the eyes of your heart will be opened.
और वहां पर एक ऐसा काजल वो लोग बनाते थे जो फार्मास्यूटिकल की जो इंडस्ट्री थी उसको देते थे, उससे पैसा मिलता था। लेकिन परमेश्वर कहता है कि उस काजल से तुम्हारी सिर्फ ये वाली आंखें खुलेंगी। क्या तुम जानते हो कि और दो आंखें परमेश्वर ने दी हैं जो आपके हृदय में है? वो आंखें सिर्फ मैं और मेरा वचन आपके लिए दे सकता है, जो आपकी आंखों को खोलेगा। Paul is writing to the Ephesian church, chapter 1, verse 17 onwards. He says, I pray that the eyes of your understanding will be illuminated, enlightened, that you may know the hope to which he has called you. और जैसे पौलुस इफिसियों की पुस्तक में उस कलीसिया को प्रोत्साहित करता है कि मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी वो आंखें खुल जाएं ताकि तुम परमेश्वर की महानता को और उनको इस तरीके से बताया कि हम तुम्हारे लिए एक ऐसा कपड़ा सी सकते हैं जिस कपड़े को पहन के तुम एकदम चमकदार बन जाओगे, क्योंकि ऐसा कपड़ा पूरी दुनिया में और कोई नहीं सिल सकता। Which means if people don't see that cloth, you throw them out of the nation and you will have a nation of only pure and holy people. और दूसरी सिर्फ वही लोग देख पाएंगे जो अपने दिलों में सही है, और जो दिलों में सही नहीं है, जो प्योर नहीं है, उनको आप अपने देश से बाहर निकाल देना। So the king was very thrilled. Why not I wear the king kind of clothes nobody else has? I will look radiant. I will look glorious. और फिर जो राजा जो था वो बड़ा खुश हो गया। हाँ,
चाहिए जिससे मैं बहुत चमक धमक वाला लगूंगा और एकदम बढ़िया लगूंगा। And also I can cleanse my people. I'll only have all pure and holy people in my. और फिर इससे मैं अपने लोगों का भी साफ सफाई कर दूंगा। वहां पर सिर्फ वो लोग होंगे जो धार्मिक होंगे और सच्चे होंगे और साफ होंगे। So the tailor said, it will cost you so much. Please give us a room outside the city and don't the progress. Send one or two of your officers, but in a month's time. तो फिर उसने राजा को बोला कि आपको ये जो कपड़ा है ये इतना इतना जो है वो लगेगा, इतना पैसा उसका, आप हमें शहर के बाहर एक कमरा दे दीजिए, हमें बार बार आके सताइएगा मत, किसी को अगर देखना है कि क्या हो रहा है तो वो कभी कभार आके देख सकते हैं, पर हमें ज्यादा दिक्कत मत दीजिएगा, 1 महीने में हम बना के आपको दे देंगे। So the king gave them some advance. These two tailors went to that room outside the city. और फिर जो राजा ने कुछ एडवांस उनको दिया, वो गए बाहर शहर के और बनाना शुरू किया। Then after 10-12 days, the king felt anxious. I wonder how my clothes are coming. So he appointed 2 officers, go and find out about my progress of my dress. फिर 10-12 दिन बाद राजा को लगा कि मेरे वस्त्रों के साथ क्या हो रहा है, तो उसने फिर भेजा 2 लोगों को कि देख क्या हो रहा है। The officers went there. One officer saw one tailor standing near a table. और फिर ऑफिसर ने देखा, वहां जब पहुंचा कि एक जो दर्जी था वो एक बड़ी टेबल के सामने खड़ा है। He was every now and then marking, taking a measurement, take and marking and then cutting. They could see every action correctly, but they could not see the cloth. और जब उन्होंने देखा कि वो जो दर्जी था वो बड़े तल्लीनता के साथ वो मार्क कर रहा है, वो काट रहा है, वो सब कुछ देख पा रहे थे, सारे एक्शन को देख पा रहे थे, लेकिन वो कपड़ा नहीं देख पा रहे थे। So other officer went to the guy who was on the sewing machine. He was feeding the cloth and stitching it at full speed. They could see every motion, but they could not see the cloth. और फिर वो दूसरे दर्जी को देखा कि जो सिलाई मशीन के साथ बैठा था और वो फुल स्पीड में कपड़ा डाल रहा है, वो सब कुछ सारा एक्शन उसका बराबर दिख रहा है, लेकिन वहां कपड़ा नहीं दिख रहा है। Then they went back. और फिर वो वापस गए। Now they have to tell the king. और फिर उन्हें राजा को बताना है क्या हुआ। And they know if they tell the king they did not see the cloth, what will happen? और फिर उनको पता था कि अगर वो राजा को बोलेंगे कि उन्होंने कपड़ा नहीं देखा तो राजा क्या करेगा। So they said to the king, wow, 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 what a cloth. Beautiful, radiant, you look glorious. फिर उन्होंने राजा को कहा, वाह क्या बना रहे हैं वो लोग, बहुत ही बढ़िया दिखोगे आप उसमें। And so the king was excited. 10 days later, he sent 2 more officers, same report. और फिर वो राजा थोड़ा बड़ा उत्साहित हो गया। 10 दिन बाद उसने फिर से 2 लोगों को भेजा और सेम रिपोर्ट लेके आए वो लोग। Nobody saw any cloth, but everybody came and praised the cloth quite a lot. और किसी ने कपड़े को देखा नहीं, लेकिन कपड़े की सब तारीफ करने लग गए। King was very anxious. When will these people bring the clothing? और जो राजा था वो बड़ा उत्सुक हो गया कि ये कैसा दिखेगा मेरे ऊपर। Then one day the tailors came with a big parcel of a packet wrapped in brown paper. और फिर जो दर्जी थे 1 महीने बाद लेके आए बड़ा सा पैकेट जिसमें वो बंधा हुआ था। And they said to the king, sir, your dress is ready. Would you like to try it? और फिर उन्होंने कहा कि आपका राजा जी, आपकी जो वेशभूषा है, पोशाक है, वो तैयार है, क्या आप उसको ट्राई करना चाहेंगे? He said, okay. They went to the bedroom. और फिर वो बेडरूम में गए। They told the emperor, please remove your clothes. और फिर एम्परर कहा कि अपने कपड़े उतार दीजिए। So emperor removed all his clothes except his underwear. और एम्परर ने सब कुछ निकाल दिया सिवाय जो चड्डी थी उसके अलावा। The underwear version is only in my version of the story. और जो चड्डी वाला जो कहानी का रूप है वो सिर्फ इनका कहानी का रूप है। And then the tailors opened the packet and the king looked, there was nothing in the packet. और फिर जो दर्जी थे उन्होंने उस पैकेट को खोला और राजा ने देखा वहां पे कुछ था ही नहीं। But the tailors bent down, removed it, dusted it, came around him and said, sir, put your hand. And so the emperor just put his hand, whatever was there. He did not see anything, but whatever the tailor said, he just did, obeyed them. और फिर उसके बाद दर्जी लोगों ने ऐसे कपड़े को निकाला जैसे वो सही में कपड़ा है, उसको झाड़ा और फिर राजा को कहा कि अपना हाथ डालिए अंदर इधर से, अपना हाथ डालिए उधर से। तो राजा ने भी वैसे ही करा जैसा वो दर्जी ने कहा। They put up all his buttons and they said, sir, you look like a god. And they kind of bent down and, worshipped him. और फिर जब उन्होंने पहना दिया उसको, वो कहा कि आप तो बिल्कुल भगवान की तरह लग रहे हैं। फिर उसके सामने झुक के उसको नमन करने लग गए। And they asked the king, you liked your dress? और फिर उन्होंने राजा से कहा कि आपको अपना पोशाक अच्छा लगा? And the king looked at himself in the mirror from all sides. All he could see is only his underwear.
और फिर राजा ने शीशे में अपने आप को देखा और वो सिर्फ जो देख पा रहा था अपनी चड्डी को ही देख पा रहा था। But he said, yes, it is lovely, grand, thank you very much. और राजा कहता है वाह बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। And the tailor said, sir, you send somebody ahead, blow the trumpet on all the roads, ask all the people to come on the side of the road, and you stand on your famous chariot and you go for darshan and wave at everybody. All will be thrilled to see what a fantastic clothing our king has. और दर्जी ने कहा कि आप जैसा करते हैं हमेशा निकालते हैं कि दो लोग भेजिए, वो बजाएंगे, वो तुर्री बजाएंगे और फिर उसके बाद आप अपने रथ पर ऐसे खड़े होके आप देखिए सबको और सबको हाथ हिलाइए। And so the king stood there on his chariot, one hand, and occasionally waving. All people had gathered and they were wanting to laugh, but they suppressed it, held their mouth very quiet. And as it went ahead, there was a bunch of children who were playing, and the children left their playing and looked at this emperor coming. And all the children said, hey, look, the emperor is in his underwear. और फिर सारे लोग देख के वो बहुत हंसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह से अपने आप को रोक रहे थे। और फिर जब राजा आगे पहुंचे तो वहां देखते हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे थे और बच्चे ने कहते हैं देखो देखो राजा अपने जांघिये में है। And all the people could not control their laughter. They started to laugh, and the king realized, I have been made a fool. He sat down and told the chariot driver, take me quickly back home. After that, the king never appeared in public and was very quiet. और फिर उसके बाद जो हुआ कि राजा को समझ में आ गया कि हाँ इन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। वो चुपके से बैठा अपने रथ में और कहा मुझे लेके जाओ। और उसके बाद उस राजा ने कभी भी कोई दिक्कत नहीं करी, वो चुपचाप कभी बाहर आया ही नहीं। You like the story? आपको कहानी अच्छी लगी? Jesus is saying, you do not know you are wretched, pitiful, naked, and blind. Like that emperor, wear clothes of righteousness that I will give you. Open your eyes and read my scripture. Otherwise, you are thinking Raymond woolen mill clothing. यीशु मसीह आपको कह रहे हैं कि देखो, अपनी आंखों को खोलो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितने खराब थे, नंगे थे और तुच्छ थे, दशाहीन थे। लेकिन जब तुम वो धार्मिक वस्त्रों को धारण करते हो जो मैं तुम्हें देता हूं, तब तुम मेरी महिमा को समझ सकोगे। The true wealth is not your bank balance. और हमारी सच्ची पूंजी हमारे बैंक का बैलेंस नहीं है। True clothing is not imported clothing or any other clothing. It is the garment of righteousness. और सही कपड़े सिर्फ जो है वो बाहर के विदेशी कपड़े नहीं है, पर जो परमेश्वर के धार्मिक कपड़े हैं वो है। Now you remember, God wants to spit you out of your mouth, His mouth. और याद कराना चाहूंगा कि परमेश्वर बीच वाली कुर्सी पे जो लोग बैठे हैं उन्हें थूक देना चाहते हैं। But our God is the God of compassion. लेकिन हमारा परमेश्वर जो है प्रेम और दया वाला परमेश्वर है। Come to the last and final point. और आखिरी पॉइंट पे आते हैं। He says, behold, I come to the door of your heart. और वो And कहते हैं knock. If you open the door, I will come in. Jesus is still willing to give us an opportunity. We may be poor, wretched, naked, blind, but He's still knocking on our door. We are irritation to Him, but He's still knocking on our door. Will you open the door? Will you read your Bible? Will you wear clothes of righteousness? Would you put on my eye salve? I am giving you a second chance. और तब परमेश्वर कहते हैं कि अपने दिल के दरवाजों को खोलो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। और फिर वो आपसे एक सवाल करेंगे, क्या तुम अब अपने सही चीजों को देखोगे? क्या तुम बाइबल को पढ़ोगे? क्या तुम मेरे धार्मिक वस्त्रों को ग्रहण करोगे? क्या तुम परमेश्वर के राज्य को उस तरीके से देख पाओगे? तब यीशु कहेंगे, हाँ, अब तुम मेरे बेटे हो। And so, if you are sitting in chair number 2, if you're only following your faith but not transmitting it, you are in chair number 2. तो अगर आप विश्वास करते हैं लेकिन उस विश्वास को कहीं कुछ कर नहीं रहे या आगे नहीं बढ़ा पा रहे, किसी को दे नहीं पा रहे, तो आप दूसरी कुर्सी पे बैठे हैं। You are an irritation in God's mouth. आप परमेश्वर के मुंह में एक इरिटेशन, उगल देने वाली चीज बना रहे हैं। So He's coming to you and saying, will you open the door? I'm knocking. और कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, क्या तुम उस दरवाजे को खोलोगे? मैं खटखटा रहा हूं। Willing to read the Bible? क्या तुम बाइबल पढ़ोगे? Wearing my clothes of righteousness. क्या तुम मेरे वस्त्रों को धारण करोगे? And by scripture allowing eye salt to put in your eyes. और
परमेश्वर के वचन के द्वारा उस काजल को अपने आंखों में डाल लोगे। Check, check. All right. If you open the door, you will shift from chair number 2 to chair number 1. और अगर आज आप उस दरवाजे को खोल दोगे तो आप दूसरी कुर्सी से पहली कुर्सी में बैठने योग्य हो जाओगे। Let's close our eyes and bow our heads. आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने नमन को झुकाएंगे Let's examine, are you in chair number 1, 2 or 3? और अपने आप को जांचें और परमेश्वर से पूछें कि हम कौन सी कुर्सी पे बैठे हैं, 1, 2 या 3। Even if you're sitting in chair number 3, और अगर आप तीसरी कुर्सी पर भी बैठे हैं, Jesus is still standing on the door of your heart and knocking. आपके हृदय के फाटकों पर यीशु मसीह दस्तक दे रहे हैं। So if you're in chair number 2, chair number 3, if you are willing to open the door, welcome Jesus in and do what he says, then you will shift to chair number 1. और अगर आप दूसरी कुर्सी या तीसरी कुर्सी पे बैठे हैं और परमेश्वर की दस्तक को आप सुन पा रहे हैं, तो आप पहली कुर्सी पे जाके बैठ सकते हैं अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। Opening the door means you're willing to read the Bible regularly, you're willing to wear garments of righteousness and willing to put eye salve. और दरवाजा खोलने का मतलब यह है कि आप अपनी बाइबल रोज पढ़ने के लिए राजी हैं, आप अपनी आंखों में उस काजल को जो परमेश्वर के वचन से हमारी आंखों को साफ करता है उसके लिए राजी हैं। और तीसरी चीज है कि आप धार्मिक वस्त्र जो परमेश्वर देते हैं उन्हें धारण करने के लिए राजी हैं। Are you willing to pray? क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? Are you willing to surrender to Jesus? क्या आप परमेश्वर यीशु मसीह के सामने अपने आप को देने के लिए तैयार हैं? Are you willing to open the door? क्या आप तैयार हैं अब दरवाजा खोलने के लिए? Why don't you pray for the next 30 seconds in your mind, but also if you have prayed that prayer, just raise your hand and drop it down. और 30 सेकंड के लिए अपने दिलों में इस प्रार्थना को करिए, और अगर आपने इस प्रार्थना को करा है तो अपने हाथों को उठाइए और फिर नीचे कर दीजिए। After 30 seconds, I will close in prayer. Heavenly Father, I believe some of my friends here have raised their hand as if to say they are opening the door. परमेश्वर पिता, मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर उन्होंने अपने हाथों को उठाया है ये बोलते हुए कि हाँ प्रभु, मैं दरवाजे को खोलना चाहता हूँ। They want to read their Bible. वो अपने बाइबल को पढ़ना चाहते हैं, They want to wear the garments of righteousness. वो धार्मिक वस्त्रों को लेना चाहते हैं, And they want to put the eye salve in their eyes. और वो उस काजल को अपनी आंखों में डाल देना चाहते हैं। So Lord, would you allow them to shift from chair number 3 or 2 to come to chair number 1? परमेश्वर, क्या आप ऐसा करेंगे कि जो मेरे दोस्त हैं जो तीसरी या दूसरी कुर्सी पे बैठे हैं उन्हें पहली कुर्सी में बिठा देंगे। May they be men and women of commitment and conviction. होने दे प्रभु कि वो लोग जो हैं वचनबद्ध हो जाएं और परमेश्वर आप में दृढ़ हो जाएं। They will be on fire for Jesus. वो यीशु आपके लिए आग से भरे हो जाएंगे। They themselves will follow Jesus, but also raise the next generation. वो अपने आप तो आपके पीछे चलेंगे ही, लेकिन वो आने वाली पीढ़ी को भी आपकी तरफ लेके आएंगे। And they have prayed that prayer this morning. और आज सुबह उन्होंने वो प्रार्थना की है। परमेश्वर, Lord, seal this decision today. और आज उनके इस घोषणा को देखिए प्रभु, And pray that in the days to come, they will see the outworking of this decision. और होने दे प्रभु कि आने वाले दिनों में वो देखने पाएंगे जो आपने परिवर्तन उनके दिलों में लाए हैं। May the power of the Holy Spirit help them from inside. और होने दे परमेश्वर की पवित्र आत्मा का जो पावर है वो उनके दिलों में और दिमाग में और बॉडीज में काम करे। This we pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Wow, thank you so much, Stanley. Thank you, Esme, as well, for being here. बहुत बहुत धन्यवाद स्टैनली आपका और एस्मी आपका। All right, so that's something to take back this week. और इस हफ्ते क्यों ना हम इसे लेके जाएं वापस और सोचे इसे। All right, within the church, sometimes we can be in any of these 3 chairs. और कलीसिया का भाग होते हुए भी हो सकता है कि हम इन 3 कुर्सियों के में हो सकते हैं। Amen. Thanks so much, Stanley. Thank you. So we'll bring the meeting to an end.
Even friends who are here with us, please do join us outside for a cup of coffee. और हम अब सभा को समाप्त करेंगे और जो दोस्त हमारे बीच में हैं क्यों ना हम कॉफी के लिए भी साथ में मिलें। All right, but have a great week. May the God the Father, Son, and Holy Spirit be with you. और आपका हफ्ता बहुत अच्छा हो और परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष All right? आप पर बनी रहे। And if you're coming to